Good morning, students. Myself Ramandeep Kaur. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ the term spectroscopy. Spectroscopy is the study of interaction between matter and electromagnetic radiations. The matter can be atoms, molecules or ions. Spectroscopy ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਫੋਟੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, x-rays, it may be anything. It depends on situation, or we can say that it depends on the instrument which we will used for to perform an spectroscopy. जो स्पैक्ट्रोस्कोपी है एक वास्ट सबजैक्ट आ जाता है। स्पैक्ट्रोस्कोपी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चीज़ां ने लर्न करने ਲਈ स्पैक्ट्रोस्कोपी ਦੇ बहुत सारे यूजेस ने। जो मेजर यूज़ है इस असां की करते हैं, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਸੈਂਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਿਵਨ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ qualitative spectroscopy, second is quantitative spectroscopy. Qualitative is related to the presence or identity. For example, protein is present in my given sample or not, it means we will go through a qualitative spectroscopy. ठीक है, ਅਸੀਂ quality check कर रहे हैं अपने product ਦੀ। means qualitative spectroscopy means it will give information about identity of a particular thing, right? And next is quantitative spectroscopy, in which number of absorbing or emitting atoms, means we check the quantity of our target in a given sample, like how much protein is present in 1 grams of given sample or 1 liters of given sample. It means we will go through a quantitative spectroscopy. ठीक है। सो बेसिक ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨਨੋਨ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਉਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ the nature of the interaction between radiation and matter may include absorption, emission or scattering. ठीक है, कि nature की सी interaction दा लाइक ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ एमिशन होएगी, एमिशन ऑफ रेडिएशनस होएगा या स्कैटरिंग होएगी। ठीक है, अगे आप थोड़ा एक्सप्लेन करांगे कि जो एब्जॉर्प्शन हुंदा है या एमिशन हुंदा है कि अगे फर्दर की थोड़ा अगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखो, जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करना, कुछ एब्जॉर्ब करना। एमिट का मतलब या एमिशन का मतलब कुछ निकलना। स्कैटर मीनस पाथ चेंज होना। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस ते जिहड़ी स्पैक्ट्रोस्कोपी है उसनूं आपां 3 डिफरेंट कैटेगरीज दे विच डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद आंदा है EMR। अज आप थोड़ियां बेसिक टर्म्स यूज़ स्टडी करांगे जो बेसिकली स्पैक्ट्रोस्कोपी यूज़ होंदियां। वो क्यों यूज़ करांगे, वो क्यों देख रहे हैं असी, क्योंकि जिहड़ियां स्पैक्ट्रोस्कोपी है
उस दे विच सारियां टर्म्स मोस्ट कॉमनली यूजड होंदियां। सो थानू ये सबजैक्ट रीड करन तो पहला पढ़न तो पहला अगर थानू बेसिक टर्म्स प्रॉपर क्लीयर होणगियां दैन तुसी अच्छी तरह नाल पूरा सबजैक्ट है जिहड़ा उसनू पढ़ सकते हो। जिवें इन जनरल थानू इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन की जगह EMR लिखा मिलेगा, ठीक है, जो कह रहा है कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस ने उन्होंने आपां रेडिएंट एनर्जीज भी बोल देंगे हैं। बेसिकली जिहड़ियां रेडिएंट एनर्जीज होंदियां वो वेव मोशन दे विच वर्क करदियां, वेव लाइक दिस वेव, ठीक है, वेव बनती है उन्होंने विच। बट जिहड़ी इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस ने वो वेव और पार्टिकलर कोई भी एक नेचर दे विच मूव कर सकदियां फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीट है, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, दीज ऑल आर कम अंडर इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस। नैक्सट टर्म आती है फोटोन। फोटोन की है एक पर्टिकुलर रेडिएंट एक पर्टिकुलर रेडिएशन या लाइट जिसकी स्पैसिफिक एनर्जी होवे उसको असीं फोटोन बोलते हैं। अ पर्टिकुलर रिप्रजेंटेशन ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट or the other electromagnetic radiation which have a specific energy is called photon, right? Next देखो वेव मोशन दे विच एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन की आपां रिप्रजेंटेशन इत्थे दिती हुई है, ठीक है। इसका एक पार्ट जो है इलैक्ट्रिक इन नेचर हुंदा है, नैक्सट मैगनैटिक इन नेचर हुंदा, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस और वेव्स, ठीक है। हेयर इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इन विच द लाइट इज पास्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर, राइट। नैक्सट इज पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट होंदी है एक अनपोलराइज्ड लाइट जो एक कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है। लाइट सोर्स के विचों जिहड़ी लाइट बाहर निकलती है उसका कोई स्पैसिफिक पाथ नहीं हुंदा। जदों असीं उसनूं पोलराइजर दे विचों मूव कराउंदे हां दैन वो पोलराइज्ड लाइट बन जाती है जो एक सिंगल प्लेन दे विच ही वाइब्रेट करती है, ठीक है। द वेव्स आर लाइट, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट जो है waves in which the vibration occurs in a single plane. The process of transforming unpolarized light into a polarized light is called polarization. जिस प्रोसेस के थ्रू असी अनपोलराइज्ड लाइट नूं पोलराइज्ड लाइट किया उसनूं पोलराइजेशन बोलते हैं। जिस दे विचों पास कराई अनपोलराइज्ड लाइट उसनूं पोलराइजर कहा जाता है। जो असी रिजल्ट नैट साडे कोल रिजल्ट है दैट इज़ पोलराइज्ड लाइट and जो initial सी that is unpolarized light. Next is monochromatic light. Monochromatic light की है जिस लाइट दे विच स्पैक्ट्रम ऑप्टिकल स्पैक्ट्रम दे विच सारी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है that is similar which is called as monochromatic light, ठीक है। जिस दे विच मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की लाइट होंदी है उसनूं असीं पॉलीक्रोमैटिक बोल दिंदे हैं, ठीक है। जिस लाइट दे विच जिस स्पैक्ट्रम दे विच सारी लाइट की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स विल बी सिमिलर इट इज़ कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड अनदर वन इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ की है द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ अ वेव स्पेशली पॉइंट्स इन अ साउंड वेव और इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव, ठीक है। जो वेवलेंथ है उसनूं असीं लैम्डा दे नाल डोनेट करते हैं। इत्थे देखो कोई भी दो सक्सैसिव क्रस्ट्स दे विच जो डिस्टेंस हुंदा है उसनूं असीं वेवलेंथ बोलते हैं। जिस रेट दे नाल ओह वेव मूव करती है उसनूं असीं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, म्यू दे नाल डोनेट करते हैं। किन्नियां वेव्स एक पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस दे विच मूव करियां एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल दे विच उसनूं असीं वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली थोड़े वर्ड्स सुनने को मिलणगे स्पैक्ट्रोस्कोपी दे विच वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है। सो थानू ये सारिया टर्म्स बारे एक्चुअल दे विच प्रॉपरली जो है पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लाइक वेवलेंथ है उसनूं असीं लैम्डा दे नाल डोनेट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसनूं असीं म्यू दे नाल डोनेट करते हैं। वेवलेंथ का मतलब है द डिस्टेंस between two successive crust of wave, frequency is rate and wave number is the total number of waves, right. नेक्स्ट इज स्पैक्ट्रोफोटोमीटर। स्पैक्ट्रोफोटोमीटर की है एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पैक्ट्रोस्कोपी दे विच यूज हुंदा है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिलेटिव टू वेवलेंथ। नेक्स्ट इज इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम
इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ रेडिएशंस। इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम की है स्पैक्ट्रोफोटोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्पैक्ट्रोस्कोपी ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ यूज़ करना, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मैटर ਨੂੰ रेडिएशंस ਦੇ ਨਾਲ इंटरैक्ट कराते हैं दैन साडे इंस्ट्रूमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ एक रीडिंग आती है जो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन होंदी है, उसनूं ਅਸੀਂ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम बोलते हैं, जिस दे अकॉर्डिंगली असी अपना फिर जड़ा सैंपल है उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं। कहते की है द इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन एंड देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स एंड फोटोन एनर्जीज। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इज स्पीड C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ठीक है, सो की है ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन उसी स्पैक्ट्रम बोलता, तो स्पीड की है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव विच इज़ डोनेटेड एज C इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, राइट। नैक्सट इज टाइप ऑफ इंटरैक्शंस। इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशंस दी किस टाइप दी इंटरैक्शंस हो सकती हैं, जिवें असीं अगे भी थोड़ा जिहा देखा सी, आपां सिंपल टर्म्स दिखे एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग, बट इसमें कुछ फर्दर टाइप्स भी होंगी। जिमें फर्स्ट की आ गया कि एमिशन है, लाइट एमिट होगी, एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम दे विच लाइट एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लैक्शन दे विच थोड़ी रिफ्लैक्ट होगी, पोलराइज दे विच ओरीएंटेशन और डायरैक्शन ऑफ पर्टिकुलर लाइट विल बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर। ठीक है, फिर जो एब्जॉर्प्शन होंगी है फिर ट्रांजिशंस कहते हैं। जिमें एब्जॉर्प्शन होंगी है तुसी पढ़िया होना छोटी क्लासिस दे विच भी, इलैक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं एक ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, जो उन्होंने कोल एनर्जी नहीं होंगी वो ग्राउंड स्टेट या की कहते हैं उन्होंने लोअर एनर्जी स्टेट दे विच वो रहिंदे हैं। बट जदों उन्होंने उत्ते कोई लाइट फॉल होंदी है वो लाइट नूं एब्जॉर्ब करते हैं, दैन दे विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और वी कैन से दैट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होंदी है दैन वो लोअर और ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट मूव करते हैं या एक्साइटेड स्टेट मूव करते हैं। अगेन जो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं दैन एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी होंदी है। ठीक है, फिर जो ट्रांजिशंस ने या तो इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती हैं जिमें एब्जॉर्प्शन ते एमिशनस हुई, या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो सकती हैं जिमें इंफ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी होगी। अगे तुसी हर एक स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं प्रॉपर डिटेल च पढ़ना, फिर थानू होर डिफरेंस पता लग जाएगा। नैक्सट इज़ रोटेशनल ट्रांजिशंस हो सकती हैं जिमें माइक्रोवेव्स हो गई, मैगनैटिक ट्रांजिशंस हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल NMR न्यूक्लियर मैगनैटिक रेजोनेंस। ठीक है, उस तो बाद फिर टर्म आती है जी, हुण तक असी की पढ़िया स्पैक्ट्रोस्कोपी की होंदी है। स्पैक्ट्रोस्कोपी सिंपल क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकती है, दैन उस एब्जॉर्प्शन एमिशन या स्कैटरिंग हो सकती है। उस तो बाद वेव लेंथ की है, फ्रीक्वेंसी की है, वेव नंबर, ठीक है जी, क्रस्ट की हुंदा है, ये सारा कुछ असीं डिस्कस किया। हुण होर कुछ बेसिक टर्म्स जिहड़ियां मोस्ट प्रोबेबली यूज होंदियां स्पैक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट इज़ फ्लोरेसेंस, the property of absorbing light of shorter wavelength and emitting light of longer wavelength। जो आप सिंपल बेसिक स्पैक्ट्रोस्कोपी की गल करते हैं दैन की आ गया कि जी एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी है, मीनस जो इलैक्ट्रॉन से उसने लाइट एब्जॉर्ब की एंड दे विल मूव फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट। एमिशन दे विच की होया, दे जस्ट अगेन मूव फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। बट फ्लोरेसेंस दे विच की है कि एक जी लाइट है वो एक डिफरेंट या शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट हुई, दैन उत्थे ना उत्थे फ्लोरेसेंस शो होंदी है। ठीक है, एंड जी फ्लोरेसेंस है वो इंस्टेंट रिजल्ट सानू दिंदी है। दैन आंदी है फॉस्फोरेसेंस, इस विच की है द मिशन ऑफ रेडिएशन इन अ सिमिलर मैनर to fluorescence but on a longer time scale so that emission continues after excitation ceases। इहदे च की है फॉस्फोरेसेंस भी की है, फ्लोरेसेंस सानू इमीडिएट रिजल्ट मिलता, इमीडिएट सानू फ्लोरेसेंस शो होंदी है। बट फॉस्फोरेसेंस की है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस च की हुंदा एमिशन है जिहड़ी वो थोड़ी लेट स्टार्ट होंदी है तो थोड़ी लेट चलती है, ईवन जो एक्साइटेशन है जिहड़ी वो स्टॉप हो जाती है। नैक्सट आते हैं फोटोकैमिकल रिएक्शनस। फोटोकैमिकल रिएक्शनस कदों होंदियां जदों साडे जिहड़ा मैटर है उसते प्रॉपर रेडिएशनस फॉल आउट होंदियां,
मैटर जो है वो रेडिएशनस नू ना तो एब्जॉर्ब करता है ना एमिट करता है, जस्ट वो जिहड़ियां एटम्स ने वो कोई कैमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर देंगे, उसको असीं बोलते हैं फोटोकैमिकल रिएक्शन। Then is chromophore, unsaturated compounds, an atom or a group whose presence is responsible for the color of the component. Chromophore की है, असी उसनू स्पैशली ऐड करते हैं अपने सैंपल दे विच जो पर्टिकुलर कलर दे लिए रिस्पॉन्सिबल होंदा, जो फर्दर थानू अगे जिवें तुसीं प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे स्पैक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर दे, थानू होर अच्छी तरह क्लीयर होगा जिथे असीं क्रोमोफोर्स यूज़ करते हैं, जिस दे नाल सानू होर विजिबल रिजल्ट्स जिहड़े दिखदे हैं। एक तो साडा स्पैक्ट्रोफोटोमीटर रिजल्ट दिंदा, प्लस सानू वो कलर नाल भी पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू अ क्रोमोफोर विच मॉडिफाइज द एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब लाइट। ऑक्सोक्रोम की है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਮੋਫੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਔਰ ਮੋਰ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट इज हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट is a change of spectral band position in the absorption, reflectance, transmission or emission spectrum of a molecule to a shorter wavelength. Because the blue color in the visible spectrum has a shorter wavelength than the most other colors, this shift is commonly called as blue shift. ठीक है, जदों spectrum of a molecule to a shorter wavelength मतलब जदों शॉर्टर जिमें एक तो है ये देखो वर्ड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, नैक्सट टर्म इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये की हुंदा जदों लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट वर्क करती है तो बेसिकली उसनू रैड शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रैड कलर का जी वेवलेंथ है वो सब तो ज़्यादा होंगी है, ब्लू कलर की वेवलेंथ सब तो घट होंगी है। सो जिथे शॉर्टर वेवलेंथ वर्क करती है उत्थे आपां ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, जिथे लॉन्गर वेवलेंथ है उत्थे असी रैड शिफ्ट बोल देंगे हैं या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, मैं एक तरह थोड़ा चंगी तरह दिखा देंगी अगर तुसी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट विच की हुंदा blue color in a visible spectrum has a shorter wavelength than the most other colors. This effect is also called as blue shift. And another is red color in the visible spectrum has longer wavelength than other colors, and it is called as a red shift. Okay, this is all about the basic terms those are most commonly used in spectroscopy. Still, if you have any query, please message me or comment in a section below. I will make sure that I will clear your query. Thank you so much.